देखिए, आप जब फिल्म देखेंगे जो बाकी के एक्टर्स हैं, ऑलरेडी हमको तो फ़ोन आ रहे हैं कि जिन लोगों ने फिल्म देखी है कि बाकी के जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके लिए बताओ वो कहाँ है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स के नंबर पूछ रहे हैं लोग। तो एज अ प्रोड्यूसर आई रियली वांट कि हमारा जितने भी कास्ट एंड क्रू है उनको पूरा ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज आप अकेले नहीं कर सकते हो यार, ये इट इज़ रियली अ कलेक्टिव। एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा अबाउट द कोट्स। जो आपने कोट्स देखे वो रियल लग रहे थे, ये अच्छे लग रहे थे, ऑथेंटिक लग रहे थे। रियल कोर्ट में तो आप ऑब्वियसली शूट नहीं कर सकते, और जनरली जो फिल्मों में जज साहब मिलॉर्ड वाली फिल्मों में सीधा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में द केस इज गॉन। सो वी हैड टू बिल्ड द सेट फॉर द कोर्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड आवर प्रोडक्शन डिजाइनर्स वर्क वेरी हार्ड विद एन आर्ट डायरेक्टर नीलेश वाघ, बिकॉज हमारे जो आर्ट डायरेक्टर थे वो एक्चुअली 2 दिन पहले छोड़ के चले गए फिल्म। सो नीलेश वाघ शुरू होने से पहले, हाँ, नीलेश वाघ स्टूड अप एट द लास्ट मिनट, एंड ये सारा कोट का सेट बनाया है। दोनों कोट जो आप देख रहे हैं उसमें से एक को मॉडिफाई किया, और मेन कोट पूरा स्क्रैच से बनाया है स्टूडियो में, और बहुत सारी बाकी लोकेशंस पे उन्होंने बहुत मेहनत की है। सो दैट प्लेज अ बिग पार्ट इन द फिल्म एज वेल। एंड संभाजी के गाने, आप जो गाने सुने, आपने एक सुना है, एक और भी है, आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा, बट संभाजी के गाने और उनका काम और उनके ट्रूप मेंबर्स का काम वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, बस हम बस खुश हैं यार, 17 अप्रैल को आ जाइए, हम और भी खुश हो जाएंगे। बाकी तो I just wanted to say that no matter what we say and what our dreams would be, we are very realistic, and yes, that weekend really matters, and the opinion of the trade is very strong and very valid, and that's the nature of the business. So of course 17th, 18th, 19th of April will be crucial days, and it will have a reflection upon the state of the film or the opinion of the film, which is fine. We are mentally prepared for the film to last as long as possible. जब तक लोग देखने आएंगे हम चलाएंगे, and we strongly believe कि अगर 17th, 18th, 19th के whatever our plans are, whether it's through digital media and other sort of strategies that we have in place, we feel that we can get a good crowd. I mean, we are doing a very limited release on that weekend, and we have 2 people who are supporting us. We have Mr. Shiladitya Bora, who heads Long Live Cinema, and we have Mr. Rahul Haksar. Both of these guys are our distribution consultants. They have incredible amounts of experience, incredible amount of faith in the project. तो उनके बलबूते पे we are hoping यार 17 को it'll go. And also see, we are relying on 2 or 3 different kinds of audiences for the film. One is people from the legal community. Second is film audiences who are discerning audiences for different kind of cinema. And we are also relying on people from Maharashtra who would watch this film because it's talking about their lives, it's talking about Marathi culture. So I think we've got a few niche groups in that way covered, and we are relying on social media, we are relying on word of mouth, and of course if there is even some kind of momentum in the beginning, I'm sure the theaters will play the film. Like I'm sure if it's doing slightly well, I don't think they will like bring the film down. Like nobody. And it's a very important week. I mean, it's Ambedkar Jayanti on the 14th of April, so The film is inspired by a lot of real incidents, but the case itself is fictional. Actually, एक केस हुआ था जितेन मारंडी का, who is a protest singer and an activist of sorts, and एक बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उसमें किसी का नाम आया सस्पेक्ट का जितेन मारंडी. अब they couldn't find that जितेन मारंडी, तो इस जितेन मारंडी को अरेस्ट करके they sentenced him to death. And and you had like people petitioning and fighting for the case. तो वो एक केस था. कबीर कला मंच का जो केस था, ऐसे काफ़ी विनायक सेन का जो केस, ऐसे काफ़ी सारे केसेस में से इंस्पिरेशंस लिए, बट जो एक्चुअल केस है वो फिक्शनल है फिल्म में. इसमें कोई द केस इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय एनी वन केस. एक्चुअली हमारी स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जब हम बात कर रहे थे एक सवाल पहले, हमें प्रेस का सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि हमारे पास अभी और कुछ स्ट्रेट अप है नहीं, हमारे पास जैसे बजट्स नहीं है, वी आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल, वी जस्ट डोंट हैव दैट राइट नाउ. सो फॉर अस इट्स रियली वर्ड ऑफ माउथ, it's journalists, press who are writing about it, maybe activists, writers, or the crowds that we've already mentioned, but at the end of the day that's the reality that we have to face. See, you spoke about Margarita with a Straw releasing on the same day as okay. So see, we don't have any plans to get an A-lister, or nor that anybody has approached us, and that was never a part of our strategy. About Margarita with a Straw, I'm sure it's a good film, it's done so well, and in fact
the director of Margarita with a Straw was so sweet and so Yeah. kind. Yeah, she wrote to us Yeah. and she's been very kind. She's actually put us in touch with an ambassador in Europe, Yeah. an Indian So ambassador, हमने to एक get us दूसरे को- another yeah. screening there. Yeah. And we have been and we've told them also, yeah, good luck. I hope it comes for both. Kalki's, I think, tweeted about us also. So like, love is there. I mean, there's no competition in हमने that एक दूसरे way. को प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे की फिल्म देखने हमारे सारे दोस्तों के साथ जाएंगे। हाँ। हम हमारे फेसबुक पे उनको प्रमोट करेंगे, वो अपने फेसबुक पे हमको प्रमोट करेंगे। ऐसा हमारा एक पैक्ट हुआ है। There is no like Yeah, and there should be a competition or collective rivalry. support for everyone. Yeah, and I'm sure people can watch 2 films in a week, you know. Weekend, yeah, no, weekend यार क्यों नहीं यार, वीकेंड पे ही देखो। लेकिन जैसे आपने बोला ना, वो फ्राइडे सैटरडे संडे अपन लोग तो जानते हैं, ट्रेड सिर्फ उसको ही देखता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, फॉर अस, फॉर एवरीबडी। How difficult is it to make a film and to release a film which doesn't boast of any big stars or no stars at all? थोड़ा कर रहे हो तो जर्नी, अभी 3 हफ्ते बाद आपको रियल आंसर मिलेगा। अभी तो हम इन द प्रोसेस है, बट गो ऑन। नहीं, कुछ चीजें तो हमें पता है कि मतलब अगर स्टार्स होते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं और कुछ चैलेंजेस है, बट because we know what we've gotten into, we have accepted those challenges, and within that context we are trying our best to, you know, make it work. So Thank you. Thank you so much. thank you so much. Happened very few times in the history of Venice itself that one film has won 2 lions, and especially for a debut film, and that was like really हाँ, insane. मतलब 5 दिन किसी ने नहीं पूछा ऐसे। 4 सितंबर को रिलीज हुई, 5 को ऐसे दिन में या शाम को पब्लिसिस्ट का फोन आया कि यार वो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम पूरा हफ्ता 10 दिन हमने बोला था हमें क्लोजिंग सेरेमनी की टिकट्स दे देना। हम पूरा हफ्ता रोज उससे बोलते थे क्लोजिंग सेरेमनी की टिकट्स दे देना। तो 5 को उसने फ़ोन करके कहा कि यार तुम्हें एक्चुअली ना वो बड़े वाले होटल, महंगे वाले होटल में 1 रात के लिए रुका रहे हैं, तो शायद कुछ हुआ है। तो हमने कहा टिकट है कि नहीं, टिकट है कि नहीं, तो टिकट मिली। तो आई मीन रियली एवरीथिंग वाज आपने जो अनएक्सपेक्टेड। सूट्स पहने थे वर्ल्ड प्रीमियर पे, उन्हीं को फिर से लॉन्ड्री करा लो। हाँ वही हाँ, वो एक सूट बना के गए थे। So that happened, and then the film was obviously doing really well. Then it started getting to a lot of festivals. Then the next big moment was what happened at Mami, because that's like home ground, and we were very excited. Again, it was the only Indian film in the international competition. We were very happy being at Mami, just playing at Mami. And everybody would be like, you know, आपको क्या लगता है जीतेगी आपकी फिल्म? And I said, you know, कभी नहीं जीतती कोई इंडियन फिल्म ने आज तक, you know, इंटरनेशनल कंपटीशन जीता नहीं है, but we are just happy to be there. It's not about winning. हाँ, और आप लोग जानते हैं जैसे मामी एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे यू गेट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा। तो वी हैव ऑल लाइक क्यूड अप ओवर द इयर्स एंड went and gone and watched movies from around the world there. So it was very emotional for us to just be there, and that was the only thing. But what happened in this screening in Mami, I mean, awards are great, sure they help, but जो रिएक्शन, जो लोगों का रिएक्शन था, जो आप कहीं पे भी दुनिया में दिखा दो, लेकिन यहाँ पे दिखाओ, क्योंकि ये बॉम्बे की कहानी है, महाराष्ट्र की कहानी है, इंडिया की कहानी है, तो जब इंडिया में दिखाओ और इंडिया के लोगों के साथ देखो तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मामी में जो हुआ, जैसे हम दोनों स्क्रीनिंग्स में, वाज इनक्रेडिबल। तालियां मार रहे थे, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो वी वर वेरी वेरी हम्बल्ड एंड टच्ड बाय दैट। And then we also won 3 awards at Mami, which like the best film in the international competition, Best director, and a special mention jury for the entire cast of the film. So that was again a very very special. And after that, the film has been on a very crazy journey of like many awards, and we've been very fortunate with the reviews and everything. Okay, so let me introduce you to the actors of the film. So the first actor I'm going to introduce, he's been doing theatre for the past, I think about 11 years in Mumbai. He's a graduate from the Emerson College in Boston, and he's a wonderful actor. He's not done too much work on film, which is why it's going to be an exciting discovery when people see him in this film. And he also looks very different from how he looks on screen. Vivek Gombar, again! Yeah. तो जो पेट बढ़ा के दाढ़ी बढ़ा के जो लॉयर थे वो यही है, and he had to go through a bit of a physical transformation to get into the skin of the character. Again, I'm going to introduce now the lead actress of the film. Again, a very very respected theatre actress, a graduate from the National School of Drama, very very respected in all like across mediums, television and theatre. And again, this is again going to be a big discovery because she's fortunately not done too many films. Fortunate for us. Yeah, but she's incredible, Yes. and it's long overdue. Long overdue. Geetanjali Kulkarni. So I'll let the actors speak a bit now. बोलो। नहीं, एज एन एक्टर मैं तो बोल चुका हूँ, थोड़ा तुम बोलो ना कुछ। बहुत ही अच्छी जर्नी थी कोर्ट की।
The whole process was very interesting. We did lot of research and it was very exciting to work with Chaitanya because his research, his script was so strong कि मज़ा आया काम करने में. और सब जो नॉन एक्टर्स थे उनके साथ काम करने में और भी मज़ा आया क्योंकि it was a learning process for us. हाँ, that part was very interesting because एक तो because Gitanjali is trained, she's been to NSD, I've also done some training as well. So when you're interacting with non-professional actors because they are so good and they know what they're doing. So I think हम लोगों को भी ये था कि मतलब हमारा गेम भी अप हो, हमारा होमवर्क करेक्ट होना चाहिए, ऐसे एक्टिंग की भनक नहीं आनी चाहिए. Because Chaitanya is also very strict about the kind of again the grammar, his conviction, what he wants to see on screen. So I think that was pretty challenging for us. क्योंकि फिल्म बहुत रियलिस्टिक है तो उसी जोन में हमें रहना था और पूरे प्रोसेस में हम बहुत सारे कोड्स में मैंने तो आज तक कभी कोड देखा भी नहीं था. तो इस पूरे जर्नी के दौरान जितने कोड सेशंस देखे सर भनभना जाता था, पता नहीं कैसे लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे दिमाग में आता था. लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला ना. एज एन एक्टर तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग एक रिफॉर्म आ गया, एक चीज़ों को देखने की अलग दृष्टि मिली, पर्सपेक्टिव मिला एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ पर्सन. और एनवायरनमेंट भी बहुत प्ले करता है. तो बॉम्बे में रह के, और मैं तो जानता हूँ तुम तो काफ़ी टाइम से रह रहे हो, मैं तो सिर्फ 2004 से हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसा बॉम्बे जो आपने देखा नहीं है तो वो आपको क्या देता है. जैसे हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर है किशोर सावंत जी, उन्होंने जो जो लोकेशंस ढूंढी है रियली चुन चुन के ढूंढी है. तो एज एन एक्टर यू गेट टू डू अ लॉट. जैसे प्रोडक्शन डिजाइनर अगर उन्होंने कुछ क्रिएट किया है तो जो उनका काम था उससे हमें बहुत हेल्प मिली. और एक तरह से जो एक ensemble होती है, एक कलेक्टिव होता है, वो यूनिट में बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो एज एन एक्टर आई थॉट वी वर क्वाइट कंफर्टेबल एंड प्रोड्यूसर वाज आल्सो वेरी गुड, सो दैट ऑलवेज हेल्प्ड. मेरे लिए रिविजिटिंग था बिकॉज आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. तो ट्रेन्स, हर एक स्पेस का और मेरा कुछ रिलेशन था. तो एज एन एक्टर मालवनी रेस्टोरेंट में जाना और खाना, ट्रेन में घूमना या चौल में जाना, चौल के सीन्स हैं, नाटक देखना, ये सब मेरे कल्चर का एक भाग है. मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स. बट एज एन एक्टर व्हेन यू गो थ्रू, यू डील विद दैट स्पेस, वो जो इंटरेक्शन होता है उस स्पेस के साथ एक एक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग, वो उससे अगेन इट वाज अ डिफरेंट टेक. Vivek had to learn a lot of Gujarati because he is playing a Gujarati in the film. So ये फिल्म 4 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है. लॉस पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ते हैं ये, और जो जज है वो महाराष्ट्र है तो वो लॉस के अलावा आपस में मराठी में बात करते हैं. ये गुजराती ये कहता है हिंदी या इंग्लिश में बात करो, मुझे मराठी समझ में नहीं आती है. और वो जो प्रोटेस्ट सिंगर है जिनको अरेस्ट किया है वो कहते हैं नहीं मुझे मराठी में बेटर रहेगा, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा. तो ऐसा इसमें एक प्ले ऑफ लैंग्वेज भी हो रहा है. और विवेक को गुजराती सीखना पड़ा. उसको कभी गुजराती उसको पता भी नहीं था गुजराती एक लैंग्वेज है. नहीं यार, इतनी बुरी हालत नहीं थी, मतलब पता था, बस बोलनी नहीं आती. हाँ, ड्रामेटिक इफेक्टली, हाँ शायद पता नहीं. बट हाँ, इट वाज चैलेंजिंग यार. वॉइस वर्क काफ़ी करना पड़ा. बाहर बड़ा हुआ तो एक्सेंट भी है, तो अंग्रेजी, हिंदी उन सब पे काम करा हुआ. फिर एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कैरेक्टर के लिए नीडेड है. एंड देन देयर इज ऑब्वियसली द रिसर्च दैट गीतांजलि इज सेइंग दैट कोर्ट में जाना या स्टेशंस पे जाना जहाँ लॉयर्स लोग उनकी कैंटीन्स में जाना, फोर्ट में वो लोग वहाँ जहाँ घूमते हैं उनके पीछे पीछे घूमना, वो बहुत काफ़ी ऐश की. और इन अ ट्रू सेंस इट्स अ फिल्म फ्रॉम मुंबई, क्योंकि हम जब घूमते हैं, हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, सिनेमा हॉल्स में, स्टेशंस पे, तो हम ये सब भाषा हमारे आजू बाजू में रहती है, लेकिन हमेशा वो फिल्मों में आती ही है ऐसा नहीं है. दिस इज द ट्रू मल्टीलिंगुअल फिल्म आई थिंक रिप्रेजेंटिंग बॉम्बे. राइट. और हमारे बाकी के भी जो एक्टर्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा. जैसे जो सिंगर है जिनको अभी आपने ट्रेलर में देखा, ही इज़ नॉट अ सिंगर, ही इज़ नॉट संग द सॉन्ग बाय संभाजी भगत. उन्होंने 1 महीना बैठ के पूरा अनकट गाने का लिप सिंक का प्रैक्टिस किया है. वो उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है. वो एक्टर नहीं है, वो एक एक्चुअली एक एक्टिविस्ट है. एक मैगजीन विद्रोही नाम की एक मैगजीन के पब्लिशर है. हमारे जो जज जिनको आपने देखा जो कह रहे हैं कि स्लीवलेस अलाउड नहीं है कोर्ट में, वो म्यूज़िक टीचर है एक स्कूल में, वो एक म्यूज़िक कंपोज़र है. ऐसे कई सारे हमने बैंकर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, वड़ा पाव वाले, हमने हर किस्म के लोगों को इस फिल्म के लिए जमा किया, इकट्ठा किया. उनको 9-10 महीने ऑडिशन किया.
1800 का 1800 लोगों का हमने डेटाबेस बनाया। सीनियर सिटीजन्स पोईसर जिमखाना के क्लब में से हमने कुछ लोगों को उठा के विवेक के मॉम डैड वो बन गए। हाँ जी। तो बहुत सारी इसमें हमने ऐसी चीज़ें करी है जो थोड़ी रिस्की थी, लेकिन इवन इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वी ऑलवेज न्यू दैट द एक्टिंग एंड द परफॉर्मेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मेन फोकस ऑफ द फिल्म, to recreate a Mumbai that feels real and looks real, and for you to believe in the characters. We knew that the acting has to be absolutely pitch perfect and that everybody has to act in a similar way. ऐसे नहीं कि कोई फिल्म की एक्टिंग कर रहा है, कोई थिएटर की एक्टिंग कर रहा है, कोई नॉन एक्टर है तो अनकम्फर्टेबल है। बिल्कुल उस तरीके से हमें उन चीज़ों से बच के रह के एक्टिंग करनी थी, which is why we would shoot only one scene a day, and these actors, to their credit, they had lots of patience because each scene would go about for 30-40 takes and sometimes up to 60 takes, because these are long scenes with no cuts sometimes. So if one thing goes wrong in a 5-minute scene, they have to start all over again. So to the credit of the actors, they नहीं, but ये तो actually two-way street है, you know, because अगर आप किसी और काइंड ऑफ फॉर्मेट में भी काम करते हैं तो अपन जानते हैं, जैसे अगर आप ऐड करें या दूसरी तरह की कमर्शियल फिल्म करें तो कभी कभार टाइम का भी लोचा होता है, तो आपको मतलब ऐसे कट सीन देने पड़ते हैं, तो यू हैव टू एज एन एक्टर ट्रांसफॉर्म। बट यहाँ पे एक एडेड बेनिफिट ये था, बिकॉज देयर वाज सो मच कन्विक्शन इन, फॉर मी पर्सनली एटलीस्ट, इन द स्क्रिप्ट एज वेल, दैट आई न्यू द काइंड ऑफ वर्क दैट वाज गोइंग ऑन, द काइंड ऑफ वर्क दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड मी। जब वो स्पेस बन रही थी, तो अगर वो 30 कराए 40 कराए, in a sense, once you give into the process of the director, na, as an actor you start to discover a lot more. और मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा हुआ एज एन एक्टर, क्योंकि हमें जिस जोन में जाना था उसके लिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस थी। एज एन इंडिविजुअल अब मुझे शायद लगे कि अरे ये ऐसे क्यों करवा रहा है, लेकिन दैट वाज नेसेसरी फॉर द फिल्म एंड आई थिंक इट हैज़ प्रूव्ड इट। और मुझे लगता है जो एक्टर, स्पेशली एक्टर्स ना, हमें लगता है अब बहुत ईगो ज़्यादा होता है ना एक्टर्स का कि हम एक्टिंग करते हैं वगैरह, वो सब तोड़ के चीर के वी वर देयर ऑन स्क्रीन। दैट I think that was necessary for the film, and again as human being and as an actor it taught me a lot. As a producer I don't have ego, as an actor maybe I don't. right, which is why he's the best producer in the world. And another thing was that generally film set पे ऐसा माहौल होता है कई बार कि बहुत हड़बड़ी और अरे ये करो, लाइट बदलो, अरे वो करो। तो यहाँ पे पहले से सबको बोला गया था कि we have to create an environment for the actors to feel comfortable. तो सब कुछ एक बार जब शॉट सेटअप हो जाता था उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ही डीएक्टिवेट, सब शांत। इट्स द मोस्ट बोरिंग शूट एवर फॉर द क्रू मेंबर्स, बट या सो बट आई मीन 3 आदमी खड़े हैं, मतलब 3 आदमी ने फिल्म नहीं बनाई है। हमारा 100-150 लोगों का क्रू था। हमने 45 दिन 2 महीने में शूट किया, अप्रैल में 2013 में। और बहुत हमारे HODs जो हैं, जिन्होंने कैमरा मृणाल देसाई ने किया है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स ने काम किया, अनीता कुशवाहा साउंड, अमृत प्रीतम, ये जो सारे लोग और जो ऑन सेट पे जो लोग थे, उनका कलेक्टिव है ये। तो दिस रियली लाइक इट्स एवरीबडीज वर्क, व्हिच इज़ व्हाई वी आर रियली एक्साइटेड टू गेट द फिल्म आउट। बिकॉज हम तीनों का तो नहीं, और लोगों का आप काम देखिए। आप जब फिल्म देखेंगे, जो बाकी के एक्टर्स हैं, ऑलरेडी हमको तो फ़ोन आ रहे हैं कि जिन लोगों ने फिल्म देखी है कि बाकी के जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके लिए बताओ वो कहाँ है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स के नंबर पूछ रहे हैं लोग। तो एज अ प्रोड्यूसर आई रियली वांट कि हमारा जितने भी कास्ट एंड क्रू है उनको पूरा ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज आप अकेले नहीं कर सकते हो यार, ये इट इज़ रियली अ कलेक्टिव। एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा अबाउट द कोट्स। जो आपने कोट्स देखे वो रियल लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, ऑथेंटिक लग रहे थे। रियल कोर्ट में तो आप ऑब्वियसली शूट नहीं कर सकते, और जनरली जो फिल्मों में जज साहब मिलॉर्ड वाली फिल्मों में सीधा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में द केस इज गॉन। सो वी हैड टू बिल्ड द सेट फॉर द कोर्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड our production designers worked very very hard with an art director नीलेश वाघ, बिकॉज हमारे जो आर्ट डायरेक्टर थे वो एक्चुअली 2 दिन पहले शूट के छोड़ के चले गए फिल्म। सो नीलेश वाघ शुरू होने से पहले, हाँ, नीलेश वाघ स्टूड अप एट द लास्ट मिनट, एंड ये सारा कोर्ट का सेट बनाया है। दोनों कोर्ट जो आप देख रहे हैं उसमें से एक को मॉडिफाई किया और मेन कोर्ट पूरा स्क्रैच से बनाया है स्टूडियो में, और बहुत सारी बाकी लोकेशंस पे उन्होंने बहुत मेहनत की है। सो दैट प्लेज अ बिग पार्ट इन द फिल्म एज वेल। एंड संभाजी के गाने, Yeah. आप जो गाने सुने, आपने एक सुना है, एक और भी है, आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। बट संभाजी के गाने और उनका काम और उनके ट्रूप मेंबर्स का काम, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, हम बस खुश हैं यार। 17 अप्रैल को आ जाइए, हम और भी खुश हो जाएंगे। बाकी तो I just wanted to say that no matter what we say and what our dreams would be, we are very realistic, and yes, that weekend really matters, and
the opinion of the trade is very strong and very valid, and that's the nature of the business. So of course 17th, 18th, 19th of April will be crucial days, and it will have a reflection upon the state of the film or the opinion of the film, which is fine. We are mentally prepared for the film to last as long as possible. जब तक लोग देखने आएंगे, हम चलाएंगे. And we strongly believe कि अगर 17th, 18th, 19th के whatever our plans are, whether it's through digital media and other sort of strategies that we have in place, we feel that we can get a good crowd. I mean, we are doing a very limited release on that weekend, and we have two people who are supporting us. We have Mr. Shiladitya Bora, who heads Long Live Cinema, and we have Mr. Rahul Haksar. Both of these guys are our distribution consultants. They have incredible amounts of experience, incredible amount of faith in the project. तो उनके बलबूते पे we are hoping यार 17 को it'll go. And also see, we are relying on 2 or 3 different kinds of audiences for the film. One is people from the legal community. Second is film audiences who are discerning audiences for different kind of cinema. And we are also relying on people from Maharashtra who would watch this film because it's talking about their lives, it's talking about Marathi culture. So I think we've got a few niche groups in that way covered, and we are relying on social media, we are relying on word of mouth, and of course if there is even some kind of momentum in the beginning, I'm sure the theaters will play the film. Like I'm sure if it's doing slightly well, I don't think they will like bring the film down. Like nobody. And it's a very important week. I mean, it's Ambedkar Jayanti on the 14th of April, so The film is inspired by a lot of real incidents, but the case itself is fictional. Actually, एक case हुआ था जितेन मारंडी का, who is a protest singer and an activist of sorts. And एक bomb blast हुए और उसमें किसी का नाम आया सस्पेक्ट का जितेन मारंडी. अब they couldn't find that जितेन मारंडी, तो इस जितेन मारंडी को अरेस्ट करके they sentenced him to death. And and you had like people petitioning and fighting for the case. तो वो एक केस था. कबीर कला मंच का जो केस था, ऐसे काफ़ी विनायक सेन का जो केस, ऐसे काफ़ी सारे केसेस में से इंस्पिरेशंस लिए, बट जो एक्चुअल केस है वो फिक्शनल है फिल्म में. इसमें कोई द केस इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय एनी वन केस. एक्चुअली हमारी स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जब हम बात कर रहे थे एक सवाल पहले, हमें प्रेस का सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि हमारे पास अभी और कुछ स्ट्रेट अप है नहीं. हमारे पास जैसे बजट्स नहीं है. वी आर नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल. We just don't have that right now. So for us, it's really word of mouth. It's journalists, press who are writing about it, maybe activists, writers, or the crowds that we've already mentioned. But at the end of the day, that's the reality that we have to face. You spoke about Margarita with a Straw releasing on the same day as okay. So see, we don't have any plans to get an A-lister, or nor that anybody has approached us, and that was never a part of our strategy. About Margarita with a Straw, I'm sure it's a good film. It's done so well, and in fact, the director of Margarita with a Straw was so sweet and so kind. Yeah, she wrote to us, and she's been very kind. She's actually put us in touch with an ambassador in Europe, an Indian ambassador, to get us another screening there. And we've told them also, good luck. I hope it comes for both. Kalki's, I think, tweeted about us also. So like love is there. I mean, there's no competition in that way. हमने दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे की फिल्म देखने हमारे सारे दोस्तों के साथ जाएंगे. हम हमारे फेसबुक पे उनको प्रमोट करेंगे, वो अपने फेसबुक पे हमको प्रमोट करेंगे. ऐसा हमारा एक पैक्ट हुआ है. There is no like and there should be a collective support for everyone. Yeah, and I'm sure people can watch 2 films in a week. Weekend यार, क्यों नहीं यार, वीकेंड पे ही देखो. लेकिन जैसे आपने बोला ना, वो फ्राइडे सैटरडे संडे अपन लोग तो जानते हैं, ट्रेड सिर्फ उसको ही देखता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, फॉर अस, फॉर एवरीबडी. How difficult is it to make a film and to release a film which doesn't boast of any big stars or no stars at all? थोड़ा कर रहे हो तो जड़ी, अभी 3 हफ्ते बाद आपको रियल आंसर मिलेगा. अभी तो हम इन द प्रोसेस है. बट गो ऑन. नहीं, कुछ चीजें तो हमें पता है कि मतलब अगर स्टार्स होते हैं तो उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और कुछ चैलेंजेस है, बट because we know what we've gotten into, we have accepted those challenges, and within that context we are trying our best to make it work. So Thank you. Thank you so much. Thank you so much.